علی بھائی ویڈیوز چینل کے تمام معزز دوستوں کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کریبین کی سیر کرنے والے ہیں۔ کریبین امریکہ کا ایک خطہ ہے جو بحیرہ کریبین، اس کے جزیروں اور آس پاس کے سمندری ساحلوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے کے جنوب مشرق میں شمالی امریکہ اور خلیج میکسیکو، مشرق میں وسطی امریکہ اور شمال میں جنوبی امریکہ واقع ہے۔ کریبین کا کل رقبہ 2.754 ملین کلومیٹر ہے اور آبادی 44.42 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ جغرافیائی طور پر کریبین جزائر کو اکثر شمالی امریکہ کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات اس خطے کو وسطی امریکہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ خطہ کریبین پلیٹ پر واقع ہے اور اس میں 7,000 سے زیادہ جزائر اور چٹانیں وغیرہ موجود ہیں۔ آرکس جزیرہ بحیرہ کریبین کے مشرقی اور شمالی کناروں پر آباد ہے۔ شمال میں گریٹر اینٹیلز، لوکیان آرکیپیلاگو، لیزر اینٹیلز، جنوب اور جنوب مشرق میں لیورڈ اینٹیلز اور ویسٹ انڈیز واقع ہیں۔ بہاماس، ترک جزائر اور کیکوس بحیرہ کریبین کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی اس خطے سے متصل ہیں، پھر بھی ان کو کریبین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کریبین کو غرب الہند بھی کہا جاتا ہے۔ اس خطے کو کریبین کا نام 15ویں صدی میں یورپیوں کی اس خطے میں آمد کے بعد دیا گیا۔ اس خطے میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کیرب تھا۔ اسی قوم کے نام کی مناسبت سے اس علاقے کو کریبین کہا جانے لگا، جبکہ اس کا دوسرا نام غرب الہند کرسٹوفر کولمبس کے اس نظریے کے باعث وجود میں آیا کہ وہ مرتے دم تک اس علاقے کو ہندوستان ہی سمجھتا رہا، جبکہ اسپینش لوگ اس علاقے کو اینٹیلاس کہتے تھے، جس کا مطلب ہے نو دریافت شدہ علاقہ۔ یہ خطہ سرزمین اپنے خوبصورت سمندری ساحلوں اور تفریحی مقامات کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں میں مشہور ہے۔ اس لیے سیاحت اس خطے کی مشہور ترین صنعتوں میں سے ایک ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اس خطے کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ کرکٹ کا کھیل ہے، جس میں ویسٹ انڈیز کئی مرتبہ عالمی چیمپئن رہ چکا ہے۔ 2007 عیسوی میں کرکٹ کا عالمی کپ جزائر کریبین پر ہی کھیلا گیا تھا، جس میں آسٹریلیا نے مسلسل تیسری مرتبہ فتح حاصل کی تھی۔ 15 دسمبر 1954 عیسوی سے 10 اکتوبر 2010 عیسوی تک اس خطے کو نیدرلینڈ اینٹیلز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ نیدرلینڈز اینٹیلز 5 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک تھا جو سبھی ڈچ تھیں۔ اس کے بعد قلیل وقت کے لیے 3 جنوری 1958 عیسوی سے 31 مئی 1961 عیسوی تک ایک سیاسی یونین بھی اس خطے میں بنی، جس کو ویسٹ انڈیز فیڈریشن کہا جاتا تھا، جو انگلش زبان بولنے والے 10 ملکوں پر مشتمل تھی۔ اس وقت ان تمام علاقوں پر برطانیہ کی حکومت تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم ان تمام ملکوں کی نمائندگی کرتی رہتی ہے۔ اس خطے کے 392 اسکوائر کلومیٹر پر 151.5 افراد آباد ہیں۔ اس خطہ زمین پر بے شمار نسلیں اور قومیں آباد ہیں، جن میں افریقی، لاطینی، ہسپانوی، پرتگالی، کریول، میسٹیزو، مولاتو، پارڈو، زیمبو، ہندوستانی، یورپی، چینی، یہودی، عرب، امریڈین، جاوانی، ہمونگ اور کثیر النسلی اقوام اس سرزمین کے مختلف گوشوں پر آباد ہیں۔ جس طرح اس خطے پر بے شمار قومیں آباد ہیں، اسی طرح ہر قوم کا اپنا الگ مذہب اور تہذیب ہے۔ سرزمین کریبین پر آباد اقوام کے مذاہب میں سے چند بڑے مذاہب کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔ کریبین اقوام زیادہ تر عیسائی مذہب کو مانتی ہیں۔ چونکہ یہ خطہ کثیر النسلی اور کثیر الثقافتی ہے، تو دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی اس سرزمین پر آباد ہیں، جن میں ہندو مت کو ماننے والے، مسلمان، افریقی اور امریکی مذاہب کو ماننے والے، روایتی مذاہب کو ماننے والے، رستافاری، مقامی امریکی مذہب، یہودیت، بدھ مت،
चीनी लोक मज़हब बशमूल ताओइज़म और कन्फ्यूशस-इज़म, बहाई मज़हब, कब्ती नान, सिख मज़हब, लादीन और चंद दीगर मज़ाहिब को मानने वाले कैरेबियन पर आबाद हैं। इस खित्ते पर 13 खुद मुख्तार मुल्क और 12 ऐसे इलाके हैं जो दूसरे मुल्कों पर इन्हसार करते हैं। कैरेबियन खित्ते पर बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, डच, फ्रेंच क्रेवल, डच क्रेवल्स, हिस्पानवी क्रेवल्स, पापियामंटो, कैरेबियन, हिंदुस्तानी और चीनी वगैरह मशहूर ज़ुबानें हैं जो इस खित्ते में बोली जाती हैं। सरज़मीन कैरेबियन के बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें ज़्यादातर जज़ीरे हैं, जिनके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। इन मुल्कों और जज़ीरों में अंगुला, एंटीगुआ और बारबुडा, अरूबा, बहामास, बारबाडोस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जज़ायर कैमन, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, ग्वाडेलूप, हैटी, जमीका, मार्टिनिक, मॉन्स्ट्रीट, नवासा जज़ीरा, नीदरलैंड एंटील्स, पोर्टो रिको, सेंट बार्थेलमी, सेंट कट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट मार्टिन, सेंट विंस्टन और ग्रेनाडाइज, ट्रिनिडाड और टोबागो, तुर्क और केकोस आइलैंड्स, अमरीकी वर्जिन आइलैंड्स। सरज़मीन कैरेबियन के मेट्रोपॉलिटन इलाके भी बहुत वसी और ख़ूबसूरत हैं, जिनमें चंद मशहूर मेट्रोपॉलिटन इलाकों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्राक्स, सेंटो डोमिंगो, पोर्ट ओ प्रिंस, मार्काइबो, बारनक्विला, सान जुआन, सैंतियागो डी लास, हवाना, वेलेंसिया, माराके, किंगस्टन, किबाली रूस, सैंटियागो डी क्यूबा, कानकन, कार्टिजिना, सिउडाड गियाना, बार्सिलोना, कोस्टा, ओरेंटल डी लागो, विलियमस्टाद, सांता मार्ता, मॉन्ट्रिया, मोंटीगोबे, सलीजो, नासाओ, पारामारिबो, चीतुमल, हिस्पानवी टाउन, पोलार, जॉर्ज टाउन, ब्रिज टाउन, चिगवानास, सान फर्नांडो, बिलीज सिटी और पोर्ट ऑफ स्पेन वगैरह इस खित्ते के बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं। कैरेबियन सरजमीन पर कुछ मुल्क आज़ाद हैं, जबकि कुछ मुल्क अभी तक या तो बरतानिया के मातहत हैं या फिर दूसरे मुल्कों के। मैं आपको उन तमाम ममालिक की मुकम्मल तफसील बताऊंगा जो आज़ाद हैं या दीगर ममालिक के मातहत हैं। सबसे पहले हम उन ममालिक की बात करेंगे जो अभी तक दूसरे मुल्कों की ग़ुलामी में हैं। इन ममालिक में पहले नंबर पर अंगवीला आता है। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक अंगवीला की आबादी 15,753 अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क अभी तक बरतानिया का मातहत है। दूसरे नंबर पर आता है अरूबा। इस मुल्क की आबादी 1,06,537 अफराद है। अरूबा पर नीदरलैंड की हुकूमत है और ये मुल्क नीदरलैंड की बालादस्ती को मानता है। बुनेर पर भी नीदरलैंड की हुकूमत है। बुनेर की आबादी 20,104 अफराद है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ये जजीरा भी समंदर पार बरतानवी इलाका है। इस जजीरे की आबादी 31,122 अफराद है। जज़ायर कैमन भी बरतानवी ज़ेरे असर है। इन जज़ायर की आबादी 68,136 अफराद है। कोराकाओ ये मुल्क नीदरलैंड का मातहत है। इसका कुल रकबा 444 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 1,90,338 अफराद पर मुश्तमिल है। ग्वाडेलूप फ्रांस का मातहत मुल्क है। इसका रकबा 1,628 मुरबा किलोमीटर और आबादी 3,96,051 अफराद है। मार्टिनिक पर भी फ्रांस की बालादस्ती है। इसका रकबा 1128 किलोमीटर और आबादी 3,68,796 अफराद पर मुश्तमिल है। मून स्ट्रीट पर बरतानिया का कब्ज़ा है।
इस मुल्क का रकबा 102 मुरबा किलोमीटर और 4417 अफराद इसकी आबादी है। नवासा आइलैंड पर अमेरिका की हुकूमत है। ये एक गैर आबाद इलाका है और कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं रहता। इस जजीरे का कुल रकबा सिर्फ 5 मुरबा किलोमीटर है। नीवा एस्पार्टा, इस मुल्क पर वेनेज़ुएला की हुकूमत है। इसका रकबा 1151 मुरबा किलोमीटर और आबादी 4,91,610 अफराद है। पोर्टो रिको, इस जजीरे पर अमेरिका की हुकूमत है। इसके अलावा सेंट बार्थेलमी पर फ्रांस की हुकूमत है। सान एंड्रीस और प्रोविडेंशिया पर कोलंबिया की हुकूमत है। तुर्क और केकोस आइलैंड पर बरतानिया की हुकूमत है। अब थोड़ा सा इस इलाके की तारीख के बारे में भी जान लेते हैं। कैरेबियन में इंसानों की रिहाइश का कदीम तरीन सबूत जनूबी ट्रिनिडाड से मिला है। इस इलाके से 7000 साल कबल के इंसानों की बाकियात मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके में इंसान 3600 कबल मसीह से आबाद हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के कैरेबियन आने के फ़ौरन बाद पुर्तगालियों और हिस्पानवियों ने इस इलाके का रुख किया और धड़ाधड़ जनूबी अमेरिका के इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए। जनूबी फ़ातहीन ने मुकामी लोगों से वहशियाना सलूक किया और खूब लूट मार की। उन यूरोपी कौमों ने इस इलाके में 9 आबादियाती कॉलोनियाँ कायम की। ये इब्तदाई कॉलोनियाँ यूरोप में सोना लेकर आईं। ख़ास तौर पर बरतानिया, नीदरलैंड और फ्रांस ने तो इन इलाकों से खूब जी भर कर लूटा और अपने ख़जाने भर लिए। मुनाफा बख्श कॉलोनियाँ कायम करने और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके फ़तह करने के लिए उन कौमों में दुश्मनियाँ भी बढ़ीं और उन 9 आबादियाती दुश्मनियों ने कैरेबियन की अक़वाम को सदियों तक यूरोपी जंगों का काकपिट बनाए रखा। उस दौर में 50 लाख अफ्रीकी ग़ुलामों को लाकर इस सरज़मीन पर बसाया गया था। 1814 ईस्वी में डच सुल्तनत ने सबसे पहले ग़ुलामी का खात्मा किया। स्पेन ने 1811 ईस्वी में क्यूबा, पोर्टो रिको और सेंटो डोमिंगो में ग़ुलामी को ख़त्म किया। 80 की दहाई में कैरेबियन में ज़्यादातर बरतानवी ज़ेर असर इलाकों ने आज़ादी हासिल की, जिसका आगाज़ 1962 ईस्वी में जमीका से हुआ। सरज़मीन कैरेबियन बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। दोस्ताना मुकामी लोगों, शानदार मौसीकी, रंगीन कार्निवाल, खूबसूरत रेतीले साहिलों और खुशगवार रेन फॉरेस्ट इस सरज़मीन की पहचान है। रकबे के लिहाज से इतना बड़ा खित्ता होने के बावजूद इस खित्ते में सिर्फ 2 मौसम हैं, खुश्क मौसम और मौसम सरमा। कैरेबियन सरज़मीन पर आबाद जजीरा सेंट मार्टिन ज़मीन का सबसे छोटा आबाद जजीरा है। इसका कुल रकबा सिर्फ 87 मुरबा किलोमीटर है, जबकि क्यूबा कैरेबियन का सबसे बड़ा जजीरा है। कैरेबियन की 75% आबादी क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैटी में रहती है। नाजरीन, ये थी कैरेबियन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।